Now, welcome you all in DSCJ Home Classes, our digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Ayaz Rana, JKKN team member. Now today I'm going to take up the second part of the video lecture pertaining to sources of energy from NCERT and JK Board of School Education book Science, chapter 5. Now इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमें कंटेंट्स कवर करने थे उनमें से हमने कन्वेंशनल सोर्सेज के रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स है वो हमने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में कवर किए हैं. Now in second part of the video lecture we will cover all the contents pertaining to non-conventional sources of energy up to lasting of energy sources. Now let's start. Non-conventional sources of energy. These sources of energy are abundant in nature, as for example solar energy, wind energy, tidal energy or biogas which is obtained from biomass. Nature के अंदर non-conventional sources of energy का जो amount है ये काफी ज़्यादा होता है. Now these sources of energy in development phase over the past few years, and these sources of energy are replenished continuously by natural processes. No, they are also called renewable sources of energy, as they can be replaced through natural processes at a rate equal to or greater than the rate at which they are being consumed. And these sources of energy cannot be exhausted completely, and therefore they can be generated continuously so as to be used again and again. यानी ये sources of energy जो हैं, यानी non-conventional sources of energy, ये nature से exhaust नहीं हो सकते, and they can be generated continuously ताकि ये बार बार इस्तेमाल होते रहें और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, किसी किस्म की पोल्यूशन काज नहीं करते नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इनकी एफिशिएंसी लो होती है. दे आर यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, and using these sources of energy is less expensive, and they are not used as extensively as conventional sources of energy. यानी जिस तरीके से हम conventional sources को बड़े पैमाने पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम इनको यानी इनका extensive use उतना नहीं है as we compare these sources of energy with conventional sources of energy. And so far as the examples of non-conventional sources of energy are concerned, solar energy, wind energy, energy from sea, geothermal energy या biomass energy, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की. नाउ लेट्स टेक सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. यानी वो एनर्जी जो हमें सन से कंटिन्यूअसली हीट और लाइट की शक्ल में मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलेंगे. एंड नो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं दो तरीके से. एक तरीका ये है कि ऐसी अप्लायंसेस जिनको मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है तो उनमें क्या होता है, तो इंसिडेंट रे जो है सन से आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर ऑन ए ब्लैक कंटेनर, और वो ब्लैक कंटेनर जो सोलर रेडिएशंस है उनको अब्सॉर्ब करती है और इस तरीके से वो ब्लैक कंटेनर जो है हीट अप हो जाता है. नाउ सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इन द अप्लायंसेस रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर, incident sun rays are reflected and concentrated by using a large concave reflector which focuses the sun rays at a single point called focus, and any object kept at that focus gets strongly heated. तो इसमें क्या होता है, ऐसी जो हमारे पास अप्लायंसेस हैं या ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है तो उनमें क्या होता है, उन डिवाइसेस में जो यानी कनकेव रिफ्लेक्टर लगाया जाता है. कनकेव रिफ्लेक्टर क्या करता है, सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है एक सिंगल पॉइंट पे, फोकस पे, और उस फोकस पे अगर हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो स्ट्रांगली हीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज हार्नेसिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. इस सोलर एनर्जी को हम किस तरीके से हार्नेस करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? तो वी ऑल नो दैट सन जो है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी and having a remarkable capacity to produce energy in the form of heat and light. यानी सन के पास एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट की शक्ल में, और एनर्जी जो सन प्रोड्यूस करता है इन वन डे, रिमेंबर एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन in one day is 50,000 times more than the energy consumed in the whole world in 1 year. It is also estimated that Earth receives only 0.7 times 0.45792% of the total solar radiations. यानी जितने टोटल सोलर रेडिएशंस सन प्रोड्यूस करता है अर्थ उसका
0.7 टाइम्स 0.45792% रिसीव करता है, मींस लेस देन 1% जो है वो अर्थ हमारी रिसीव करती है आउट ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सन। सोलर एनर्जी कैन बी पुट टू यूज इन 2 डिफरेंट वेज। ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक हो गया डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, अनदर इज इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। डायरेक्ट यूटिलाइजेशन के केस में solar energy can be used either by collecting it as a heat energy by using solar cooker। इन सोलर कुकर के अंदर सोलर एनर्जी एज ए हीट यूज की जाती है फॉर कुकिंग फूड, या इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बाय यूजिंग सोलर सेल्स। सोलर सेल का इस्तेमाल करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और सेकंड हमारे पास जो यूटिलाइजेशन है सोलर एनर्जी की, दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। इनडायरेक्ट जो सोलर एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी लाइक बायोमास, या इसको यूटिलाइज किया जाता है in the form of energy obtained from sea, wind or tides. Next is solar heating devices. Now, what is a solar heating device? A device that gets heated by absorbing solar energy radiated by the sun. यानी ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल करे which is radiated by the sun or which is produced by the sun in the form of heat and light, that is known as solar heating devices. हमारे पास कुछ सोलर हीटिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं, जैसे सोलर कुकर हमारे पास सोलर हीटिंग डिवाइस है, या सोलर वाटर हीटर है, या इसी तरीके से सोलर फर्नेस है, या इसी तरीके से हमारे पास सोलर सेल है। ये पॉपुलर सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सोलर कुकर। What is solar cooker? A solar cooker is a device which utilizes solar energy for cooking food material or food items। यानी ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल करके खाने को तैयार करे या उसका इस्तेमाल करके खाना तैयार हो, उस किस्म की डिवाइस को हम सोलर कुकर कहते हैं। एंड सोलर कुकर इज मेड अप ऑफ एन इंसुलेटेड मेटेलिक और वुडन बॉक्स विच इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। इसमें एक मेटेलिक या वुडन बॉक्स होता है जिसको अंदर से ब्लैक पेंट किया जाता है। एंड द लिड ऑफ द बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद द प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। और इस कुकर का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, उसमें एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें एक थिक ग्लास शीट भी होती है। और जिस फूड को हमने पकाना है उसको एक मेटल कंटेनर के अंदर हम डालते हैं, और उस मेटल कंटेनर को हम बाहर से ब्लैक पेंट करते हैं। कंटेनर को फिर वुडन जो बॉक्स या मेटालिक बॉक्स है, जो बॉडी है कुकर की, उसके अंदर रख के उसके ऊपर थिक ग्लास शीट रख देते हैं। द बॉक्स देन केप्ट इन द डायरेक्ट सनलाइट एंड इट्स रिफ्लेक्टर इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ओवर इट। यानी रिफ्लेक्टर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है सन की तरफ, ताकि सूर्य से आने वाली जो रेज हैं वो रिफ्लेक्टर पर रिफ्लेक्ट करके सीधा कुकर के जो थिक ग्लास शीट है उसके अंदर पास हो जाए। एंड इट प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतना टेम्परेचर 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कुकर मेंटेन कर सकता है, और इस टेम्परेचर पे हमारा खाना तैयार हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द सोलर कुकर। हाउ सोलर कुकर वर्क्स? व्हेन द सोलर कुकर इज kept in direct sunlight, reflector reflects both visible and infrared rays of the sun on the top of the box in the form of a strong beam of light। यानी जब कुकर को हम सनलाइट में रखेंगे और सन से आने वाली जो स्ट्रॉन्ग रेज हैं, रिफ्लेक्टर उन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। जो रेज सन से आ रही हैं वो विजिबल या इंफ्रारेड रेज हैं, सन से आने वाली ये रेज जो हैं, रिफ्लेक्टर उन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरीके से कुकर का जो टॉप थिक ग्लास शीट है उस पर फेंकेगा, और इस तरीके से वो रेज जो है कुकर के बॉडी के अंदर या उसके बॉक्स में चली जाएंगी। ब्लैक सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द कंटेनर, या जो वेसल उसके अंदर हमने रखी है वो क्योंकि ब्लैक बॉडी है वो इन रेज को एब्सॉर्ब करेगा। नो व्हेन द इनर ब्लैक सरफेस बिकम्स क्वाइट हॉट, यानी कुकर की अंदर की जो बॉडी है, क्योंकि बॉक्स को अंदर से पेंट किया है, मेटालिक कंटेनर को बाहर से पेंट किया है, तो ये जो सरफेसेस जो हैं ये जब गर्म हो जाएंगी, दे स्टार्ट रेडिएटिंग हीट। तो वो हीट रेडिएट करना शुरू कर देंगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। बट जो ऊपर थिक ग्लास शीट लगाई है वो इन रेज को कुकर के अंदर से बाहर एस्केप होने नहीं देगा। एंड एज ए रिजल्ट ये जो रेज हैं दे गेट एब्सॉर्ब्ड इन द बॉक्स, एंड विद द रिजल्ट जो इंटरनल टेम्परेचर है कुकर का वो रेज कर जाएगा अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इट इज एट दिस टेम्परेचर जो फूड हम कंटेनर के अंदर रखते हैं कुकर के अंदर वो तैयार हो जाती है, वो खाना उसमें इसी टेम्परेचर पे पक जाता है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द सोलर कुकर। ये इसका बॉक्स है
और ये यहाँ पर लीड जो है इसमें एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि सूरज से आने वाली जो रेज हैं यहाँ रिफ्लेक्ट होकर थिक ग्लास शीट से अंदर पास हो जाएंगी, और ये मेटालिक कंटेनर है जिसमें हम खाना तैयार करते हैं। एंड हियर इज आल्सो अ फिगर ऑफ द सोलर कुकर। तो ये जो दोनों जो यहाँ पर हमने फिगर्स हम आपको दिखा रहे हैं, दीज आर द बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर एक तो हमारा फ्यूल सेव करता है, it does not cause any type of pollution. Then nutrients of the food to be cooked in the solar cooker, they are not destroyed. जो nutrients फूड के अंदर होते हैं, जो हम सोलर कुकर के अंदर जो फूड हम तैयार करते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस कुकर के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंड अगर हम लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स की बात करें, सोलर कुकर की लिमिटेशंस क्या है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन ए क्लोडी डे और ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त क्योंकि सोलर एनर्जी नहीं होती, क्लोडी नाइट में भी सोलर एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए इस सोलर कुकर को हम क्लोडी डे ड्यूरिंग नाइट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ द सोलर कुकर हैज टू बी एडजस्टेड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसको बार बार डायरेक्शन जो है सन की तरफ रखना पड़ेगा, और ये एक इसका ड्रॉबैक है। एंड इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम फॉर कुकिंग फूड। खाने को तैयार होने में काफी टाइम लगता है सोलर कुकर के अंदर। एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्राइंग एंड मेकिंग चपातीज, यानी चपाती बनाने में या किसी फूड आइटम को फ्राई करने में हम इस कुकर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोलर वाटर हीटर को सोलर गीजर भी बोलते हैं। इट हैज एन इंसुलेटेड बॉक्स विच इज पेंटेड ब्लैक इनसाइड। एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है, उसको अंदर से ब्लैक पेंट किया जाता है। एंड इट हैज ए सिस्टम ऑफ कॉपर ट्यूब्स, और अंदर कॉपर की ट्यूब्स लगी होती हैं। एंड it is covered with a glass plate which allows heat to enter inside but does not allow heat to escape out. यानी इसके ऊपर थिक ग्लास शीट लगाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो हीट रेज होती हैं, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, थिक ग्लास शीट उनको अपने से पास करने देता है, और इस तरीके से ये जो हमारे पास सोलर वाटर हीटर की बॉडी है इसके अंदर चली जाएगी, जो ब्लैक बॉडी है उसको अब्सॉर्ब करेगी, और इस तरीके से जो ब्लैक बॉडी है जब हीट अब्सॉर्ब करेगी, हीट अप हो जाएगी, वो दोबारा हीट रेज प्रोड्यूस करेगी, वो वापस निकलने की कोशिश करेंगी, बट ग्लास शीट जो है उनको वापस एस्केप नहीं होने देगी। विद द रिजल्ट जो अंदर की जो कॉपर ट्यूब्स हैं वो गर्म हो जाएंगी, और इसके अंदर जब पानी मूव करेगा तो वो गर्म हो जाएगा। And when water flows through the copper tube, it absorbs heat and becomes hot. तो पानी जब यहाँ से घूमेगा पाइप से तो इस तरीके से वो गर्म हो जाएगा। And heated water is then stored in this tank, और जरूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं for different purposes. This is how solar water heater या solar geyser works. इसके बाद आ गया हमारे पास सोलर सेल। सोलर सेल is a device which converts solar energy into electrical energy. यानी ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दैट इज सोलर सेल। और सोलर सेल्स आर मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, और सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, दीज आर द सेमी कंडक्टर्स। इनसे सोलर सेल को बनाया जाता है। एंड जो मॉडर्न जो सोलर सेल होता है दैट इज मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स व्हिच कंटेन सर्टेन impurities in such a way that a potential difference gets generated when light falls on them. And solar cell, एक single solar cell एक 0.5 to 1 volt का potential difference produce करता है, और we can say 0.7 watt of electricity is produced. And to generate large amount of current, a number of solar cells are arranged together in a definite pattern like in a solar panel. अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो उस वक्त हमें बहुत सारे सोलर सेल सोलर पैनल की शक्ल में लगाने हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन अ सोलर पैनल इज देन स्टोर्ड इन अ battery which is connected to it, and then it is used for different purposes. So this is the diagram of the solar cell, how it works. solar energy solar cell पे पड़ेगी। इसका एक n जो है n type semiconductor material होता है, that is thin, और एक इसका p type, they are in close contact with each other. और जब सोलर एनर्जी इस n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, और इस तरीके से जो है करंट जो है जनरेट होगी। हम बात करें यूजेस ऑफ सोलर सेल के बारे में, तो सोलर सेल्स को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर लाइटनिंग हाउसेस एंड स्ट्रीट्स। इसी तरीके से सोलर सेल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन different electronic gadgets, electronic appliances like televisions, radios, watches, calculators, toys, and even
टॉय गेम्स को रन करने में भी सोलर सेल जो है इस्तेमाल होता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड टू डेवलप इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स। ऑफशोर जितने भी ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सोलर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं। एंड सोलर सेल्स आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या रॉकेट्स या स्पेस व्हीकल्स जो होती हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर सेल्स इस्तेमाल होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स, तो सोलर सेल्स इमोबाइल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, therefore they require little maintenance. So next advantage of solar cell is that they can be made available to areas inaccessible to other energy means. यानी ऐसी जगह जहां पर दूसरे एनर्जी के जो मीन्स हैं वो नहीं पहुंच सकते या एनर्जी वहां नहीं पहुंचाई जा सकती, तो वहां पर हम एनर्जी सोलर सेल से प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम ओशंस। Oceans acquire almost 71% of the surface of the earth. हमारी अर्थ का 71% ओशंस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड enormous amount of water present in them not only act as a big collector of solar heat energy but also store large amount of it due to its high specific heat. ये भी हम जानते हैं कि जो ओशंस हैं ये सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, और इस सोलर एनर्जी को कलेक्ट ही नहीं करते बल्कि इस सोलर एनर्जी को स्टोर भी करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। एंड ओशन वाटर को हम यूज करते हैं एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी। एंड मेन फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी जिनको आने वाले कंटेंट्स में हमें पढ़ना है, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी, then ocean tidal energy, and last sea wave energy. Now the next topic is ocean thermal energy. This is the first form of energy that is obtained from oceans. Now हम जानते हैं कि सूरज की जो रेज हैं जब ओशन पे पड़ेंगी तो ओशन के सरफेस के वाटर को ये हीट अप कर देंगी, बट जो वाटर डीपर सेक्शंस ऑफ द ओशन के अंदर रहता है वो रिलेटिवली कोल्ड रहता है, and energy available due to this temperature difference between the deeper levels of the ocean and the surface of the ocean, that is known as ocean thermal energy. And temperature difference at many places in case of ocean may range up to 20 degrees centigrade. यानी जो deeper sections of the ocean है, जो surface है ocean की, इनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है दैट इज अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट में एनर्जी ऑफ द वार्म सरफेस वाटर को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट वोलाटाइल लिक्विड लाइक लिक्विड अमोनिया इनटू अ गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। एंड ये जो वेपर स्टेट में जब अमोनिया चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से एट अ हाई प्रेशर वो जो वेपर्स हैं अमोनिया के, लिक्विड अमोनिया के, दे आर अलाउड टू फॉल ऑन द टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर। तो इस तरीके से जनरेटर जो है आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब जो जब वेपर यूज हो जाती है, इसके वेपर्स यूज हो जाते हैं, उसके बाद इन्हीं वेपर्स को एक कंडेंसर के अंदर पास किया जाता है जहां पर डीपर सेक्शन से ओशन के डीपर सेक्शन से कोल्ड वाटर लिया जाता है और वो इस वेपर्स ऑफ द अमोनिया को दोबारा लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको हम इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। हियर इज द वेपोराइजर जहां पर हम लिक्विड अमोनिया को पास करते हैं और ओशन का जो सरफेस वाटर है दैट इज वार्म, वो वाटर इस लिक्विड अमोनिया को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जब ये अमोनिया गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी और एक प्रेशर के साथ ये टरबाइन के ऊपर फेंकी जाएगी और टरबाइन जो है रोटेट करेगा और इस तरीके से टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर के साथ होता है और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब ये जब वेपर्स यूज हो जाते हैं, इन वेपर्स को एक कंडेंसर के अंदर पास किया जाता है, फिर डीपर सेक्शंस ऑफ द ओशन से कोल्ड वाटर लिया जाता है, वो इन अमोनिया के वेपर्स को दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हो। इस तरीके से लिक्विड अमोनिया इज अगेन पंप्ड इनटू द वेपोराइजर टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स और इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट form of energy obtained from ocean is ocean tidal energy. Now we all know that rise of ocean water due to attraction of the moon is referred as high tide and its fall is low tide. यानी sea water में या ocean water में tides बनते हैं, high tide, low tide। अब ये जो enormous movement of water होती है because of tides,
it provide a large amount of energy known as tidal energy in coastal areas of the world. अब इस टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टाइडल बैरेज और टाइडल डैम. ओशन वाटर जब राइज करेगा ड्यू टू हाई टाइड और ड्यूरिंग हाई टाइड, उसको ट्रैप किया जाता है एक बैरेज के अंदर, एंड देन दैट वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन वाटर टर्बाइन एंड दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग. और जब टर्बाइन रोटेट करेगा, उसका कनेक्शन जनरेटर के साथ होता है, तो इस तरीके से वो जनरेटर से एनर्जी ड्राइव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करेगा. इसको इस फिगर में जानने की कोशिश करते हैं. दिस इज द लेवल ऑफ द लो टाइड एंड दिस इज द लेवल ऑफ द हाई टाइड. ये लो लेवल है टाइड का, ये हाई लेवल है टाइड का. और जब टाइड्स बनते हैं सी के अंदर, तो उस जब वो वाटर ऊपर उठता है तो उसको रोका जाता है एक बैरेज बना के, एंड देन द गेट्स ऑफ द बैरेज आर ओपन एंड दैट वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द टर्बाइन. और टर्बाइन का कनेक्शन जनरेटर के साथ है. ये जब रोटेट करेगा टर्बाइन, और जनरेटर क्या करेगा, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. Now the next form of energy obtained from oceans is sea wave energy. Energy from ocean is also available in the form of sea waves. We know that जब ocean की surface पे winds blow करती हैं, तो high speed waves बनती हैं. अब उन waves के पास एक energy होती है जिसे हम sea wave energy बोलेंगे. अब ये जो high speed waves ocean के अंदर बन रही हैं, उनके पास, because these waves are in a motion, therefore they possess lot of kinetic energy. अब इस काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टू डराइव डायनेमोस और जनरेटर्स. तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द डायनेमो वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय सी वेव्स. जब सरफेस ऑफ द ओशन के ऊपर फास्ट विंड्स ब्लो करेंगी, सी वेव्स चलेंगी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करेंगी, और जब ये वेव्स स्ट्राइक करेंगी टर्बाइन्स ऑफ द डायनेमोस, तो वो रोटेट करेंगे. उस तरीके से डायनेमो या जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम सी वेव्स. नो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम ओशंस. यानी ओशन से जो हमें एनर्जी मिलती है, उनके क्या लिमिटेशंस है. ओशन थर्मल एनर्जी, अभी इसका हमने जिक्र किया है. ओशन थर्मल एनर्जी से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं. इसमें हमारा बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी जो है बहुत कम है, दैट इज ओनली 3 to 4%. इसी तरीके से टाइडल वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स. इसके भी इतने ज्यादा सुटेबल साइट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ओनली फ्यू साइट्स आर अवेलेबल. लेकिन जो पावर जनरेशन है वो इंटरमिटेंट रहती है, और पावर जब भी मिलेगी तो इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी. इसी तरीके से वेव एनर्जी से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं. इसका भी जो आउटपुट है दैट इज वेरिएबल, और जो जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है टू जनरेट पावर फ्रॉम वेव एनर्जी, वो एक्सपेंसिव है. So the next source of energy is geothermal energy. We know that heat inside the earth heats up water below the surface. यानी जमीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो वाटर को हीट करेगा, and this hot water under certain condition can be used as a source of energy. और इस किस्म की एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे. जियोथर्मल एनर्जी is one of those few sources of energy that do not come directly or indirectly from solar energy. And now this underground water, because of high temperature inside the earth, gets converted into steam, and this steam remains trapped between the rocks at a high pressure. और फिर ये steam at a high pressure अगर through pipes ये turbines of the generator के ऊपर डाला जाए, तो इस तरीके से टर्बाइन रोटेट करेंगे, तो इस तरीके से जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस steam से प्रोड्यूस हो सकती है. And at certain places this hot water and steam they gush out from the earth surface after making certain cracks between the rocks. और उस वक्त ये जो पानी गर्म जमीन से बाहर आएगा, उसे हम बोलेंगे नेचुरल गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स. न्यूजीलैंड एंड यूएसए आर द टू मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज डन. नो द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. यानी जियोथर्मल एनर्जी के मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या है. तो जियोथर्मल एनर्जी इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड लीस्ट पोल्यूटिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मोस्ट वर्सेटाइल है, यानी इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इट इज लीस्ट पोल्यूटिंग, इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन. इट कैन बी हार्नेस्ड फॉर 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर. जियोथर्मल एनर्जी इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है,
एज कम्पेयर टू सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, पावर जनरेशन लेवल जो है जियोथर्मल एनर्जी का वो ज्यादा होता है। अगर इसको हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो जो पावर जनरेशन लेवल है जियोथर्मल एनर्जी का, दैट इज मच हायर. Geothermal energy can be used for power generation as well as for direct heating. Advantages or limitations of geothermal energy. So geothermal energy hotspots are scattered and usually some distance away from the areas that need energy. Overall power production has a lower efficiency, that is almost 15% as compared to that fossil fuels which produce 35 to 40% of power. No, noise pollution is caused by drilling operations at geothermal sites. Now the next type of energy is nuclear energy. A physical reaction in which nucleus of an atom undergoes a change to form a new atom and releases an enormous amount of energy is called nuclear energy. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस चेंज हो जाता है और एक नया आइटम बनाता है विद द रिलीज ऑफ enormous amount of energy, that is nuclear energy. And there are two distinct ways of obtaining nuclear energy, that is nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fission reaction, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को ओटोहन ने 1938 में रिपोर्ट किया. उसके मुताबिक जब एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस को के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाएगी तो ये अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस जो है ये स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है टू स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, और इस प्रोसेस के दौरान एक अनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ हीट जो है ये निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और इस किस्म की रिएक्शन जिसमें एक अनस्टेबल हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक हो तो मीडियम वेट स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है. फॉर एग्जांपल जब यूरेनियम 235 एटम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाए तो यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाता है दो स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर. एंड इस प्रोसेस के दौरान 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं एंड द न्यूट्रॉन्स सो फॉर्म्ड अगेन ये हिट करेंगे यूरेनियम को तो एक चेन रिएक्शन बनेगी और एनर्जी बनती जाएगी. तो इस प्रोसेस के दौरान enormous amount of energy in the form of heat and light is produced and रिएक्शन जो इसमें होगी वो इस तरीके से है. यूरेनियम 235 के ऊपर जब यूरेनियम की बम्बार्डमेंट करेंगे तो यूरेनियम 235 ये स्प्लिट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे. ये आगे चल के फिर यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे तो इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. तो हियर वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, जितने भी फिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर लॉस होता है, दैट इज टोटल मास ऑफ ऑल द फिशन प्रोडक्ट्स इज लेस देन द रिएक्टेंट्स. यानी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका मास रिएक्टेंट से कम होता है. एंड this lost matter gets converted into energy which is released in nuclear fission reaction. अब ये जो मैटर लॉस होता है ये मैटर लॉस नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर और वो एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. एंड दिस एनर्जी, the energy obtained due to loss of matter of mass m is given by famous Einstein equation, that is E is equal to mc square. Now the next is nuclear fusion reaction. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हेंस बेथ ने 1939 में रिपोर्ट किया. फ्यूजन मींस टू कंबाइन टुगेदर, देयरफॉर न्यूक्लियर फ्यूजन मींस कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 or more nuclei to form a single nucleus. Thus nuclear fusion reaction is that in which 2 lighter nuclei combine or fuse together to form a stable heavier nucleus with the simultaneous release of large amount of energy. सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और एक स्टेबल हैवियर न्यूक्लियस बनता है. और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी की एक बहुत बड़ी मकदार जो है खारिज होती है. इस किस्म की रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं. और एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज हायर देन दैट प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. यानी जो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन में बनती है उससे कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान एनर्जी खारिज होती है. एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सन. जैसे हमने देखा न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सन के अंदर होता है. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 4 to 15 million degrees, and that is 4 into 10 की पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड to 15 into 10 की पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड.
इस टेम्परेचर पे सन के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। दस दैट इज व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ड्यूटेरियम के एटम्स को हीट किया जाता है एट ए हाई टेम्परेचर, तब दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ heavy nucleus of helium, and in this process, in this reaction, a large amount of heat is released. For example, 1H2 plus 1H2, ये ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई हैं, जब इनको हीट करेंगे ये आपस में कंबाइन होंगे, फ्यूज करेंगे, तो इस तरीके से एक हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, और इस प्रोसेस के दौरान एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इस डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन के केस में हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है टू लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होती है, एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के केस में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन large amount of energy is released. In case of nuclear fission, it is a chain reaction. Nuclear fusion is not a chain reaction. Nuclear fission takes place, or it proceeds at all temperatures, whereas nuclear fusion proceeds at 4 into 10 की power 6 degree centigrade to 15 into 10 की power 6 degree centigrade. Nuclear fission reaction can be controlled, but nuclear fusion reaction cannot be controlled. और जो products nuclear fission के होते हैं, they are generally radioactive, but the products of nuclear fusion are not radioactive. And in case of nuclear fission, it produces large quantity of nuclear waste, but in case of nuclear fusion, no nuclear waste are produced in this type of reaction. Now, advantages of nuclear energy: it produces large amount of useful energy from a very small amount of nuclear fuel. Suppose यूरेनियम 235 की अगर हम बात करें, 1 kg यूरेनियम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतनी 25,000 टन कोयला प्रोड्यूस करेगा. So from here we can conclude that a little amount of nuclear fuel can produce a very large amount of useful energy. So once the nuclear fuel is loaded into the nuclear reactor, the nuclear power plant can go on producing electricity for 2 to 3 years at a stretch, and there is no need for putting in nuclear fuel again and again. Moreover, it does not produce any smoke, harmful gases in the air, like carbon dioxide, which contributes to greenhouse effect, or sulfur dioxide, which causes acid rain. So these are the few advantages of nuclear energy. Now, disadvantages of nuclear energy. The major hazard of nuclear power generation is storage and disposal of spent or used fuels. यानी न्यूक्लियर पावर तो जनरेट हम कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम बनती है स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स. यानी उनको स्टोर कहाँ करना है न्यूक्लियर फ्यूल्स को, या जब न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल कर लिया तो उसको डिस्पोज के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. और जैसे यूरेनियम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज करते हैं तो इट स्टिल डिकेज इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रेडिएशंस जो खतरनाक साबित हो सकती हैं. Now, improper nuclear waste storage and disposal results in environmental contamination. यानी अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो इससे हमारा माहौल खराब होगा, एंड दिस क्रिएट सम ट्रबल्स, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस. एंड तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने का एक कॉस्ट फैक्टर भी है, हाई कॉस्ट इसमें लगता है, and there is high risk of environmental contamination. Coming to the environmental consequences of increasing demand for energy. इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दिन ब दिन एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ रही है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को बढ़ा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्रीकल्चर. अब ये जो डिमांड है दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, या इवन यूरेनियम है. और इस डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस हैं वो सामने आ रहे हैं. हम जब फॉसिल फ्यूल की कंबशन कर रहे हैं, इससे एसिड रेन बन रही है, और एसिड रेन जो है हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इवन साइल को, या हमारी एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रही है. इवन burning of fossil fuel is increasing the amount of greenhouse gas, that is carbon dioxide in the atmosphere, और इस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है. और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर ऑब्टेनिंग फायरवुड, तो इससे सॉइल इरोजन हो रहा है, या
वाइल्ड लाइफ को खत्म होने का, डिस्ट्रॉय होने का एक खतरा पेश हो रहा है। इसी तरीके से जब हम हाइड्रो पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है एनवायरनमेंट के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्राइसिस, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas and uranium, they are the non renewable sources of energy। यानी यूरेनियम या फॉसिल फ्यूल्स ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पहले से बने थे अब नहीं बन रहे हैं। एंड दीज आर बीइंग यूज्ड एट अ रैपिड रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इसको बड़ी तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस तेजी से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में ये खत्म हो सकते हैं, और जिससे दुनिया के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस हो सकती है। Now next is ways to reduce energy consumption या conservation of energy resources, or ways to overcome energy crisis। Now first we should conserve fossil fuels। कोयला, पेट्रोलियम और या नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको हमें कंजर्व करना है। एंड वी शुड यूज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें कुछ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे जिक्र हम कर चुके हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनको हमें इस्तेमाल करना है। वी शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है, ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम एनर्जी को बचा के रखें। एंड वी शुड प्रोड्यूस फ्यूल एफिशिएंट मशीनरी। फ्यूल एफिशिएंट मशीनरी बनानी है हमें। और electrical appliances should be kept off when they are not in use, and we should educate people about the importance of conserving energy resources and not to exploit them। So with this we are able to finish the second part of the video lecture। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।